Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We have completed chapter 31 in civics. Today we are going to start a new chapter in civics, that is chapter 32. Okay. The name of chapter is Understanding and Confronting Marginalization. Okay. Understanding, you know, and here confronting means to face, सामना करना किसी चीज़ का, and marginalization means आप जानते जैसे किनारा, सीमांत. ओके, सीमांत, और यू कैन से मार्जिनलाइज करना मीन्स सीमांत. फुल क्या है? कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन मीन्स सीमांत का सामना. Okay, we will study in this chapter first of all introduction, then after what is meant by the word marginalization. Okay, and after that we will discuss about marginalized groups. Okay, and then after what is meant by marginalized groups. Okay, these three topics today we will discuss. So open your book. Okay, chapter 32, Understanding and Confronting Marginalization. Okay, so let's start and the other topics which we will discuss in this chapter, that is you know that what are scheduled caste, who are scheduled castes, who are scheduled tribes, and also who are Adivasis. Okay, and not only this, other topics also we will discuss like the scheduled caste and scheduled tribes, and then after constitutional provisions for safeguarding the interest of the scheduled caste and also scheduled tribes, and that government efforts in making special laws and policies for the upliftment and of the scheduled caste, for whom? Both for the scheduled caste and the scheduled tribes. And then we will discuss about the scheduled caste and the scheduled tribes Prevention Atrocities Act 1989, and then after we will study about a case study that is related to Rathanam. Okay, and after that we will discuss untouchability, what is meant by untouchability, and also different forms of untouchability. Okay, and what were the changing scenario, manual scavenging, and also the plight of the manual scavengers, and law concerned with manual scavenging, and also lastly we will discuss about the Adivasis and marginalization, causes of becoming increasingly marginalized, and also we will discuss about the conditions of Adivasis and Adivasis demands, and C.K. Janu's views about the Act 1989 and minorities and their marginalization. And what do you think that constitutional safeguards to protect minority communities are very important, and Muslims and marginalization. And after that, last topic of this chapter is do you agree with the statement that economic and social marginalization are independent? Okay, these are the topics which we will discuss one by one in this chapter. Okay, so first of all let us start with the introduction. In this chapter we shall deal with marginalization, its various aspects, the different marginalized groups, and efforts made by their improvement and upliftment. In this chapter we will study about the marginalization, and also what were the aspects means पहलू, और क्या पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे. फिर उसके बाद से डिफरेंट कई तरह के जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, हमने इसको भी डिवाइड कर दिया है ग्रुप्स में.
एंड इसके लिए जो क्या ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं ताकि इनका इम्प्रूवमेंट हो सके और जो कहते हैं अपलिफ्टमेंट हो सके, ठीक। So first of all, let us discuss about what is meant by the word marginalization. Okay, marginalization means forcing someone on the fringes or the margins and depriving him or of his rightful place in the mainstream of the society. मतलब होता है कि जैसे किसी को हम फोर्सफुली उसके स्थान से उसके जो राइट हैं उसको वंचित कर रहे हैं, यानी उसको हम हटा रहे हैं, समाज से निष्कासित कर रहे हैं, इसी को कहते हैं मार्जिनलाइजेशन, ठीक। दिस मे बी ड्यू टू वेरियस कॉजेस। हो सकता है कि आपने देखा होगा कि क्लास में भी कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चे को अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप, अच्छे बच्चे से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। मान लीजिए कि कोई अच्छे घर का है तो वो बच्चा किसी पुअर फैमिली के बच्चे को अपने प्लेस पर नहीं बैठाना चाहता है, या अदर किसी बच्चे को बैठाना नहीं चाहता। यहाँ पर क्या कॉज है? बिकॉज ऑफ स्टेटस और इकोनॉमिक कंडीशन। और कभी कभी यहाँ पर सोशल कंडीशन भी हो जाता है, इकोनॉमिक कंडीशन भी हो जाता है, इस बेस पर भी मार्जिनलाइजेशन होता है, ठीक। एंड सम आर मार्जिनलाइज्ड बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी। हम उसको किनारा क्यों करते हैं? हम अपने आसपास नहीं भटकने देते हैं, यही सोचते हैं ये हमारे स्टेटस के खिलाफ है, ये गरीब बच्चा हमारे साथ क्यों रहेगा, लोग हमें क्या कहेंगे, ठीक। एंड सम बिकॉज ऑफ देयर बैकवर्ड एरियाज। और क्या होता है, कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि जो बैकवर्ड एरिया से आते हैं, उनको अच्छी स्पीकिंग नहीं आती है, मैनर नहीं आता है, तो उनको भी हम किनारा करते हैं, उनको किनारे रखते हैं कि नहीं इसके साथ कोई नहीं बैठेगा, कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ये इंटीरियर एरिया से बिलोंग करता है, इसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं, इसके पास मैनर नहीं है, ठीक। एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो कई प्रकार के कई एरिया से बच्चे बिलोंग करते हैं स्कूल में, तो कई सारे लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। डिफरेंट कस्टम्स और देयर डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स। आपने देखा होगा ना कि आपके क्लास में हर एक रिलीजियस ग्रुप्स के बच्चे हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और भी जो हैं ग्रुप के लोग, सारे कैटेगरी के बच्चे बिलोंग करते हैं। With the passage of time, they began to be considered as low and were relegated to the background and excluded from the mainstream. और जैसे जैसे समय बीतता गया उनको क्या कंसिडर्ड किया गया? लो, बहुत नीचे कैटेगरी में कंसिडर्ड किया गया, दूर करने की कोशिश की गई, एंड टू द बैकग्राउंड एंड एक्सक्लूडेड, और उन्हें फिर बाहर रखा गया। किससे बाहर रखा गया? मेन स्ट्रीम से, मेन स्ट्रीम से उन्हें बाहर रखा गया। दे बिगन टू बी डिस्प्लेस्ड बाय द वेल्दी, उनका स्थान बदल दिया गया, किससे? वेल्दी लोगों से। बेटर एजुकेटेड एंड पॉलिटिकल पावरफुल क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, वो लोग अपने साथ मिलने जुलने नहीं देते हैं, ये इनकी कैटेगरी अलग है, उनको, इन लोगों को अलग कर दिया जाता है, यानी इनको मेन समाज से अलग रखा जाता है, उन्हीं को मैं क्या कहते हैं? मार्जिनलाइजेशन। ओके, so let's start about the next topic, that is marginalized groups. What is meant by marginalized groups? Marginalized groups are those groups of the society which remained ignored in the past due to various social and economic causes. ये marginalized group वो ग्रुप है जो कि समाज में बहुत पहले से ही उनको इग्नोर किया जा रहा था, कई सारे फील्ड में, या तो हो सकता है सोशल फील्ड में भी उन्हें इनको इग्नोर किया जा रहा हो, इकोनॉमिक फील्ड में भी उन्हें इग्नोर किया जा रहा। देयर वर सो मेनी कॉजेस, द चीफ एमंग दीज आर द, किन किन लोगों को इग्नोर किया जा रहा था? शेड्यूल्ड कास्ट, एससीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटीज,
other backward classes OBCs and the minorities में जिसकी संख्या कम हो। ठीक, अभी भी होता है ना कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को थोड़ा सा अलग रखा जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए नहीं, गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत सारे छूट दे रखे हैं। ठीक है, ओके। हु आर द दलित्स और शेड्यूल कास्ट? दलित या शेड्यूल कास्ट किसे कहते हैं? जो पुराने ज़माने में जिसको अनटचेबल कहा जाता था, अछूत कहा जाता था, उन्हीं लोगों को दलित या शेड्यूल कास्ट कहते हैं। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डजंट डिफाइन द शेड्यूल कास्ट, लेकिन हमारे संविधान में किसी के लिए डिफिनीशन नहीं है, ना ही शेड्यूल कास्ट के लिए डिफिनीशन है, ना ही शेड्यूल ट्राइब्स के लिए डिफिनीशन है, ना ही अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए डिफिनीशन है, ना ही किसके लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए डिफिनीशन है। नहीं, ये डिफिनीशन हम लोगों ने खुद क्रिएट किया है। ओके, हमारी सोसाइटी ने क्रिएट किया है। इन सिंपल वर्ड्स we can say that caste which were formerly treated as untouchables in the society are called dalits और scheduled caste। जो पुराने ज़माने में जिनको हम कैसे ट्रीट करते थे, बहुत ही अनटचेबल के तौर पर ट्रीट करते थे, उन्हीं को हम आज के ज़माने में दलित या शेड्यूल कास्ट कहते हैं। ठीक, according to the census of 2001 their number was 166.64 million, which comes to 16.2% of the total population of India। इनकी जो नंबर कितनी थी, 166.64, जो कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उस कितनी है, 16.2 में ये लोग इंक्लूड होते हैं। ओके, and next who are the scheduled tribes? Who are the scheduled tribes? As is the case with the scheduled caste, the Constitution of India doesn't define the scheduled tribes। जिस हिसाब से अभी आपने शेड्यूल कास्ट का देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए कोई डिफिनीशन नहीं है, इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी कोई डिफिनीशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कोई डिफिनीशन नहीं है। In simple terms, we can say that groups which were socially discarded, एक ऐसे लोग, ऐसी ग्रुप होती है जिसको हम सोशली समाज से उसको क्या कहते हैं, बाहर निकाला हुआ है, उसको बाहर निकाल दिया है। एंड वेर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, और आर्थिक स्थिति से भी वे लोग कमज़ोर हैं। ठीक, मोस्टली रिसाइडिंग इन ट्राइबल एरियाज आर नोन एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और स्पेशली ये लोग कहाँ रहते हैं, ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, जो बिल्कुल ही बैकवर्ड में एरिया में ये रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001 their number was 84.33 million, which comes to 8.20% of the total population of इंडिया। इनकी भी जो संख्या है हमारे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन से 8.20% है। हु आर द आदिवासीज? आपने आदिवासियों को देखा है, कभी कभी आपको ऐड दिखाई देता होगा कि पूरा कपड़ा क्या क्या पहने होते हैं, इतनी बड़े बड़े कान में पहने होते हैं। ठीक, वो स्पेशली कहाँ रहते हैं, जंगलों में ही रहते हैं, उन्हीं को हम आदिवासी कहते हैं। The term आदिवासी literally means original inhabitants, जो कहाँ रहते हैं, ओरिजिनली कहाँ रहते हैं, who have been living in close association with the forest, जो कि फॉरेस्ट के निकट, टोटली एकदम फॉरेस्ट के निकट रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आदिवासी। They form about 8% of the India's total population, और इनकी संख्या कितनी है, हमारे इंडिया के टोटल पॉपुलेशन से 8% ये लोग इंक्लूड करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ India's total population and have been living in vast areas of, और हमारे इंडिया के कई सारे एरिया में रहते हैं। कहाँ कहाँ रहते हैं, लेट्स सी।
where they used to live. First, see here, Jharkhand, Madhya Pradesh, and also they used to live in which place, beta? Madhya Pradesh, Odisha, and also Rajasthan, and also in Gujarat, also in Maharashtra, also in Andhra Pradesh, also in West Bengal, okay, and also in Chhattisgarh, okay, and also the seven states, that is Meghalaya, Tripura, Mizoram, Manipur, Assam, Nagaland, Assam, Arunachal Pradesh. Okay, here they used to live. Who used to live in this place? Yes, Adivasis. Okay, beta. And there are about 500 different Adivasi groups. How many? Different 500 different types of Adivasis who follow their own religion. वो किसी religion को follow नहीं करते हैं, वो उनका खुद का बनाया हुआ religion है, उन्हीं का खुद बनाया हुआ customs है and rituals different from the either. सबसे अलग है इनसे, ना ही हिंदुइज्म से मिलता है, ना ही क्रिश्चियनिटी से मिलता है, और ना ही इस्लाम से मिलता है. ओके, and now last topic of this today's, that is, what do you understand by the minority? Minorities whether religious or lingual, या हम लैंग्वेज में माइनॉरिटी लें या किस में लें, रिलीजियस में, are those who have less number of people of their own sect and religion in a particular region. मान लीजिए किसी एरिया में हिंदू की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और मुस्लिम की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो क्या है, किसकी कौन सी माइनॉरिटी है, यानी मुस्लिम की माइनॉरिटी है. वहाँ पर माइनॉरिटी क्लास कौन है, मुस्लिम. According to the census of 2001, the number of religious minorities was 189.4 million, which comes to 18.42% of the total population of India. इसमें क्या है, माइनॉरिटी क्लास कितनी है, 18.42% of the total population of India. Okay, in today only this much. Tomorrow we will discuss about the differences between scheduled caste and scheduled tribes. So here's your homework. Do exercise A of not chapter chapter 29. Okay, sorry. Yes. Do exercise A of chapter 29. Okay, beta. No, 29 नहीं बेटा, 1 minute. Let me know. 31. Okay. So thank you.